Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer today we are going to start our next chapter which is about Windows 10. So let's start the chapter. Learning objectives, introduction about MS Windows 10, start menu, tiles, quick access menu and task view. Warm up. Who am I? Every window apart from the one being shaken can be minimized using me. I am dash. Second, I am there on the extreme right of the taskbar. I minimize all windows that are open and show the desktop. I am dash. Third, I display the files that were recently opened. I am dash. Fourth, you can set reminders with my help. I am dash. बच्चों आपको इन हिंट को इन क्लूज को पढ़ के बताना है कि ये क्या है, मतलब ये कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है. ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप खुद से करेंगे. नाउ इंट्रोडक्शन. Windows 10 is designed to please both touch and mouse users. It is also designed to be intuitive for users for both Windows 7 and Windows 8.1, incorporating the best of both worlds to enhance your experience and help you be more productive. बच्चों Windows 10 जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बोथ यूज़र्स हैं, टच यूज़र्स और माउस यूज़र्स, वो दोनों इसे अच्छे से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. ठीक है, और इसे इस तरह से भी डिज़ाइन किया गया है कि विंडोज़ के जो प्रीवियस दोनों वर्जन थे, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1, उनका बेस्ट निकाल के इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आप इसको जब यूज़ करो तो आप अच्छा एक्सपीरियंस लो और मोर प्रोडक्टिव बनो. About MS Windows 10. Windows 10 is the latest version of MS Windows operating system. It provides a graphical user interface GUI to work on computer. It allows what you see is what you get. WYSIWYG environment. It allows to open many programs at the same time. It is very easy to use and learn. There is no need to learn any command to operate the computer. It has some small pictures icons in it which you can use to perform different tasks with the help of mouse. बच्चों यहाँ पे आपको MS विंडो के फीचर्स बताए गए हैं. ठीक है, MS विंडो 10 जो है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसके, एक तो ये आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI प्रोवाइड करता है ताकि आप कंप्यूटर में अच्छे से क्या कर सको, काम कर सको. ठीक है, और ये अलाउ करता है आपको व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट पे, जो आप देखते हो आपको वही मिलता है. ठीक है, ये आपको काफ़ी प्रोग्राम जो है एक समय में ओपन करने में हेल्प करता है. ठीक है, मान लो आपने एक फ़ाइल खोली है, आप उसको मिनिमाइज़ करके दूसरी फाइल खोल सकते हैं. ठीक है, और फिर इस तरह से आप एक फ़ाइल से दूसरी फाइल पर स्विच भी कर सकते हैं और उनमें काम भी कर सकते हैं. और ये बहुत ही आसान है यूज़ करने में भी और सीखने में भी. ठीक है, ये आपको बहुत सारी कमांड्स को लर्न करना सिखाता है जो कि हम कंप्यूटर में ऑपरेट करते हुए यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें छोटी छोटी पिक्चर्स होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं, और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में. स्टार्ट मेन्यू. The start menu provides a centralized location for accessing programs, settings and features. You can open it by clicking the Windows icon in the bottom left corner or pressing the Windows key on your keyboard. The start menu is enhanced with resizable tiles and other new capabilities to help you be more productive. अब Windows 10 का जो स्टार्ट मेन्यू है, जो Windows 8 में नहीं था, ठीक है, अब उसको दोबारा से वापस लाया गया है. और आप देख सकते हो पहले ये जहाँ पे था अभी भी ये वहीं भी आपको मिलेगा. ठीक है, जो आपके नीचे की तरफ लेफ़्ट कॉर्नर में सबसे पहला जो मेन्यू था वो क्या था, हमारा स्टार्ट मेन्यू, तो वो वापस से इसमें आ गया. स्टार्ट मेन्यू को आप इन्हेंस कर सकते हो, उन्हें क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो उसकी टाइल्स को. ठीक है, और इसमें दूसरी भी एक्टिविटीज़ जो है, कैपेबिलिटीज़ को क्या किया गया है, ऐड किया गया है.
From the start menu, you can lock your computer, change your account setting or sign out. Quickly access your apps, both traditional Win32 and modern, documents, pictures and settings. Shut down your computer, restart it or put it to sleep. Search for apps, settings and files and search across the web. Immediately launch advanced system tools such as Power Option and Disk Management. अब स्टार्ट मेन्यू से आप क्या क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हो और अपनी अकाउंट सेटिंग को चेंज कर सकते हो और साइन आउट भी कर सकते हो, ठीक है। अपनी ऐप्स में आप कोई एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हो, पिक्चर्स और सेटिंग्स को भी आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। आप इजीली अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो और उसे स्लीप पे भी भेज सकते हो। ऐप्स को सर्च कर सकते हो, सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो, फाइल्स को ओपन कर सकते हो और वेब पे भी, मतलब जो इंटरनेट पे भी अगर आपको कुछ सर्च करना है तो वो भी आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी एडवांस सिस्टम टूल को लॉन्च कर सकते हो जैसे कि पावर ऑप्शन और डिस्क मैनेजमेंट। किसके थ्रू? स्टार्ट मेन्यू के थ्रू। डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू। टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू, सेलेक्ट द स्टार्ट बटन on the far left of the Windows taskbar or press Windows logo key on the keyboard, ठीक है। अब आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आप सिंपली नीचे की तरफ टास्क बार में आप इस तरह से विंडो का लोगो देखोगे तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा और सिंपली ऐसा विंडोज़ लोगो की आपके कीबोर्ड में होगा, उसको भी अगर आप प्रेस करोगे तो आपका स्टार्ट बटन, स्टार्ट जो मेन्यू है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। Lock your computer, change your account pictures or sign out. On the start menu, select your username in the upper left corner of the menu. Choose the option you want, change account setting, lock or sign out. अगर आपको अपनी अकाउंट सेटिंग चेंज करनी है तो आप कैसे करोगे? सिंपली आप स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे, ठीक है, उसके बाद आप अपर लेफ्ट कॉर्नर में अपने यूज़र नेम पे जाओगे, उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपली चेंज अकाउंट सेटिंग पे जाकर उसे लॉक या फिर साइन आउट भी कर सकते हो। क्विकली एसेस योर एप्स, फाइल्स एंड सेटिंग्स। In the left pan of the start menu, immediately below your username, you will find the followings: links to your most used and recently added apps, links to File Explorer and settings, a power button, and all apps button. Select it to display a list of all your apps. ठीक है, अगर आपको कोई ऐप को लॉन्च करना है या ओपन करना है तो आपको सिंपली कहाँ जाना होगा, आप अपने मोस्ट यूज्ड या फिर रिसेंटली एडिड ऐप्स पे क्या करोगे, लिंक करोगे, उसके बाद आप लिंक करोगे फाइल एक्सप्लोरर पे और सेटिंग्स पे, ठीक है। फिर पावर बटन आपको वहाँ पे नज़र आएगा एंड ऑल बटन पे आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सेलेक्ट इट टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ योर ऐप्स। उसके बाद इस तरह से आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको अपनी जो भी ऐप आपको ओपन करनी है उसको आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। Select an app to launch it, press and hold or right click the app to choose from a broader range of options which depending on the app may include the following: open, run as administrator, uninstall, pin to start, pin to taskbar, remove from this list। ठीक है, अगर आपको कोई ऐप लॉन्च करनी है तो आप उस पर सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आप प्रेस एंड होल्ड करोगे, ठीक है, राइट क्लिक से, उसके बाद आप ब्रॉडर रेंज में से चूज़ करोगे कोई भी ऑप्शन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऐप, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप उसको ओपन करना चाहते हो या आप उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहते हो, उसे इंस्टॉल करना चाहते हो, पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार, या फिर आप उसे उस लिस्ट से क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो। शट डाउन योर कंप्यूटर, रीस्टार्ट इट और पुट इट टू स्लीप। ठीक है, On the start menu, select power, select the option you want, sleep, shutdown और restart। ठीक है, अगर आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है या फिर उसको रीस्टार्ट करना है या फिर आपको उसको स्लीप पे भेजना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, स्टार्ट मेन्यू पे जाना होगा, फिर आपको पावर सेलेक्ट करना होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा इन ऑप्शन में से कि आपको स्लीप करना है, शट डाउन करना है या फिर
रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको शट डाउन करना होगा तो आप अपने कंप्यूटर को सिंपली क्या कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। सर्च फॉर एप्स, सेटिंग्स एंड फाइल्स एंड सर्च अक्रॉस द वेब। Start typing in the search box to the right of the start button to search across the following locations. Apps on your PC including both traditional Win32 and modern. Settings, files including your documents, pictures, music and videos. Apps in the Windows Store. Popular Bing searches on the web. अगर आपको सर्च करना है, कोई भी सेटिंग है, कोई ऐप है, कोई फाइल है, या फिर आपको वेब में सर्च करना है, तो आप कैसे करोगे? सिंपली आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड में आपको एक सर्च बार नज़र आ रहा होगा। आप उसमें जो भी ऐप आपको सर्च करनी है आप उसका नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको वेब से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो उसमें क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कोई भी सेटिंग आपको चेंज करनी है तो सेटिंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी ऐप फाइल आप उस सर्च बार के थ्रू सर्च कर सकते हैं। When initial search results are displayed, you can select My Stuff to find results for apps, settings, photos, videos and music across your PC and OneDrive. Select Web to be taken to a full list of Bing search results. ठीक है, आप इस तरह से भी सर्च बार का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप माई स्टफ को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसमें आपको जो भी ऐप में या जो भी फाइल में आपको काम करना है, या आपको फ़ोटोज़ देखनी है, वीडियोस देखनी है, ठीक है, म्यूज़िक सुनना है, तो आप अपने पीसी से माई स्टफ के थ्रू सुन सकते हैं। फिर आपको अगर कुछ वेब से सेलेक्ट करना है, आपको मान लो ऑनलाइन कोई सॉन्ग सुनने हैं, तो आप वेब को भी सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हो अपने रिजल्ट्स। Tiles. In the right pane of the start menu, you will find tiles for some common apps. To move a tile, just drag it to another position. You can drag tiles to rearrange them within the right pane of the start menu. You can also drag apps between the tile view and the app list view. Right-click a tile to display a menu for performing other actions with that tile. Depending on the app, these actions may include unpin from start, uninstall, open file location, turn live tile off, pin to taskbar, run as administrator, resize a tile. ठीक है, अब टाइल्स पे आप कैसे काम करोगे? आप सिंपली राइट पैन पे जाओगे आपके स्टार्ट मेन्यू के पास, ठीक है, आपको वहाँ पे टाइल्स मिल जाएंगी फॉर सम कॉमन ऐप्स। तो बच्चों आप चाहो तो ऐप्स को भी ड्रैग कर सकते हो बिटवीन द टाइल व्यू और ऐप लिस्ट व्यू पे, ठीक है। आप किसी भी टाइल पे राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे उसके साथ में आपके सामने क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो आपसे पूछेगी कि आप इसको अनपिन करना चाहते हो स्टार्ट से या फिर अनइंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो भी आप कमांड देना चाहते हो या जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे वो उस पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। टाइल्स इन द स्टार्ट मेन्यू आर डिवाइडेड बाय कैटेगरी। To rename a category, divider selected and enter the new name for that category. अब जो हमारे स्टार्ट मेन्यू जितनी भी टाइल्स होती हैं उनका क्या होता है, अपना एक एक नाम होता है, ठीक है। अगर आप उस कैटेगरी को रीनेम करना चाहते हो तो सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे और वो आपसे पूछेगा कि आप उसको दूसरा नाम क्या देना चाहते हो, फिर आप टाइप करके उसका नाम चेंज कर सकते हो। क्विक एक्सेस मेन्यू। The Quick Access menu provides access to advanced system tools such as power options, device management, command prompt, task manager and control panel. To display the Quick Access menu, right-click the Start button or press Windows logo keys plus X on the keyboard. तो बच्चों अगर आपको क्विक एक्सेस मेन्यू को डिस्प्ले करना है तो आपको सिंपली स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करना होगा, या फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, आपको कीबोर्ड पे इस तरह से विंडोज़ लोगो की को प्रेस करना है, उसके साथ उसको प्रेस करते हुए आपको एक्स प्रेस करना है, तो आप इसको क्या करोगे, ओपन कर पाओगे, ठीक है। नाउ टास्क व्यू।
Many users know that you can press Alt plus Tab to switch between running apps. In Windows 10, we added a Task View button to the Windows taskbar to make this feature more discoverable. Virtual desktops, a new feature described on the next page, are also managed through the Task View. अब विंडोज़ 10 में एक और चीज़ इन्होंने ऐड की है जो कि है हमारा टास्क व्यू. ठीक है, मैनी यूज़र्स क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस टैब को प्रेस करते हैं ताकि वो रनिंग ऐप्स के बीच में क्या कर सकें, स्विच कर सकें. ठीक है, लेकिन विंडोज़ 10 में ऐसा नहीं है. आपका टास्क व्यू बटन जो है वो क्या करता है, आपकी जितने भी फाइल्स ओपन होती है उनको वो देखने में एक से दूसरे में स्विच करने में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये आपके टास्क बार में होता है. ठीक है, ये फीचर्स आपके टास्क बार में होता है. इसमें आप इजीली देख पाते हो कि आपकी फ़ाइल कौन सी ओपन है, कौन सी आपने मिनिमाइज़ की हुई है और कौन सी पे आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो. ठीक है, डिस्प्ले द टास्क व्यू. To display the task view, select the task view button on the Windows taskbar or press Windows logo key plus tab on the keyboard. अब इसे आप कैसे डिस्प्ले करोगे, सिंपली आप टास्क व्यू बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, जो कि इस तरह से आपकी स्क्रीन पे नीचे की तरफ नज़र आ रही होती है. ठीक है, ये छोटा सा लोगो होता है जिसका मतलब होता है आपका टास्क व्यू. या फिर आप विंडोज़ लोगो की प्रेस करके उसके साथ टैब बटन अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो उससे भी ये ओपन हो जाता है. स्विच बिटवीन ओपन एप्स यूजिंग द टास्क व्यू. टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स यूजिंग द टास्क व्यू, सेलेक्ट द थंबनेल फॉर द ऐप यू वांट विद इन द टास्क व्यू. तो बच्चों, अगर आपको अपनी ओपन ऐप्स के बीच में क्या करना है, स्विच करना है, सपोज आपने बहुत सारी ऐप्स खोली हुई है, उसके बीच में आपको स्विच करना है, तो आप सिंपली टास्क व्यू आइकन पे जाकर क्लिक कर सकते हो या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो उस थंबनेल को जो आपकी ऐप को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी. और आप उसको जब सेलेक्ट करोगे तो आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे इजीली जा सकते हो. पॉइंट्स टू रिमेंबर. Windows 10 is designed to please both touch and mouse users. Windows 10 provides a graphical user interface GUI to work on computer. Windows 10 allows what you see is what you get, WYSIWYG environment. The start menu is enhanced with resizable tiles and other new capabilities to help you be more productive. The Quick Access menu provides access to advanced system tools such as power options, device management, command prompts, task managers, and control panel. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.